Ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. What we have to study today, students? Salt March. Let us Salt start. March. Salt March and Salt Civil March. Disobedience Movement. Yes, ma'am. Okay. Are you ready? Let us Yes, ma'am. proceed further. Okay. Page number 63. Students, open your book. Page number 63. Good morning, ma'am. Good morning. Your topic is the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Let us continue this. Students, we have discussed yesterday that different type of things were surveyed by the leaders of our Indian National Congress. And Gandhi ji has collected all the demands and the grievances of the people, and he listed it in 11 demands. All these demands were given in a list which was given in the way of demanding 11 demands to Lord Irwin. What happened after this? Let us discuss here. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes. जो भी मांगे थी उन्हें Good morning, ma'am. यस बेटा गुड मॉर्निंग उनको 11 मांग माने बहुत सारे मांग थी बहुत सारे डिमांड थे लोगों की बहुत सारे ग्रेवियंसेस थे उन सबको कलेक्ट करके क्या किया गया कि 11 डिमांड्स के रूप में उसको तैयार कर दिया गया एंड दैट लिस्ट वाज सेंट टू वायसराय इरविन ऑन विच डे on 31st of January 1930 and he also sent a letter along with that those demands he has sent a letter also. What was written in that letter? Let us see here. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes, from industrialists to peasants. उद्योगपति से लेकर के एक मामूली किसान तक सभी लोगों की इच्छाओं को, सभी लोगों की मांगों को, सबके जरूरतों के ऊपर विचार करके करीब 11 मांग बना दिए गए थे और उनको लिस्ट में तैयार करके गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के पास भेजा. द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रैंकिंग. उसके पीछे क्या विचार था कि ये जो हमारे डिमांड्स हैं इनको वाइड रैंकिंग कर दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए, विस्तृत कर दिया जाए, पूरे देश भर के लोग जिससे जुड़ सकें, so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. ऐसा इसलिए किया गया ताकि हर वर्ग का इंसान, जो भारत का रहने वाला हर वर्ग का इंसान है, वो क्या करे, वो इस मूवमेंट से जुड़ सके. यानी हर किसी को एहसास हो कि इससे मुझे भी फायदा है, मुझे भी बेनिफिट है और मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए. The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. और उसमें से सबसे जबरदस्त क्या था, मुख्य क्या था, जिससे चारों ओर इर्द गिर्द सभी डिमांड्स घूम रहे थे, वो क्या था, abolition the salt tax. Why Gandhi ji has chosen salt for this movement? Underline here. Salt was something consumed by the rich and the poor alike. नमक क्या था, यहाँ क्वेश्चन आता है बेटा कि क्यों नमक कोई उन्होंने चुना. तो नमक ऐसा पदार्थ है, salt was something consumed by the rich and the poor alike. गरीब भी उसे कंज्यूम करते हैं और अमीर भी उसे कंज्यूम करते हैं, सबके द्वारा वो एक जैसा ही इस्तेमाल होता है. इसीलिए इसको समझा गया कि ये मांग यदि रखी जाएगी तो इसमें सारे लोग स्वतः जुड़ जाएंगे. एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड. द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन
Mahatma Gandhi declared revealed the most oppressive face of the British rule. गांधी जी ने कहा कि यदि इसके ऊपर मोनोपोली लगाती है सरकार या इसके ऊपर यदि टैक्स लगाती है तो ये तो उसका सबसे दमनकारी चेहरा होगा। हमें पहले इसी को हटाना है, उसके बाद बाकी सारी चीजों के लिए हम अपनी विचारों को रखेंगे और डिमांड करेंगे। Mahatma Gandhi's letter was in a way an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11th March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irwin was unwilling to negotiate. उस लेटर में गांधी जी ने कहा कि इसको मान लीजिए कि एक चेतावनी है। What? In a way an ultimatum. एक चेतावनी मान लिया जाए इसे, जो ये 11 मांगों की जो पत्र हमारे द्वारा भेजा जा रहा है लॉर्ड इरविन के पास, उसे ये मान लिया जाए कि ये एक चेतावनी है और यदि इसे पूरा नहीं किया जाता तो हम लोग 11 मार्च को कहां चले जाएंगे? फुल लॉन्च करेंगे क्या? इस सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन को तो किसी भी तरह की वार्ता करने की इच्छा ही नहीं थी। उसको कोई इच्छा नहीं थी कि हमें वार्ता करना है कि नहीं करना है, इनकी मांगों को सुनना है कि नहीं, पूरा करना है कि नहीं, कुछ नहीं। So Mahatma Gandhi started his famous Salt March, accompanied by 78 of his trusted volunteers. Aditya Kumar, Saurabh Kumar, what are you doing? Yes, ma'am. क्या कर रहे हो बेटा? आदित्य? Yes, ma'am. म्यूट योरसेल्फ। कुछ पूछना है बाबू? No, ma'am. फिर तुम्हारे सराउंडिंग्स की आवाज आएंगी, जो भी तुम बोलोगे वो सब सुनाई देगा, सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे उससे। The march was over 240 miles. ऐसा मार्च मतलब पैदल यात्रा। क्या किया जाएगा? हम लोग एकदम फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। कुछ भी बात नहीं किया। कौन? लॉर्ड इरविन। ही वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। अब वो जब बात करने के लिए तैयार नहीं था तो क्या किए सब? 11 मार्च तक देखिए, उसके बाद चल दिए। कहां से? अपने आश्रम साबरमती से दांडी कोस्ट तक। दांडी की जो समुद्र तट थी वहां तक इन्हें पैदल जाना था। दूरी कितनी थी? व्हाट वाज द डिस्टेंस? 240 माइल्स, 240 माइल की दूरी थी। और गांधी जी ने अपने सबसे भरोसेमंद 78 फॉलोअर्स को लेकर के, जिनको की इच्छा थी कि हाँ हम लोग चलेंगे, वैसे ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स को लेकर के और इस मार्च को स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम गांधीजी's आश्रम इन साबरमती टू गुजरात, गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। साबरमती आश्रम से कहां तक जाना था? गुजरात के उस समुद्र तटीय क्षेत्र जिसका नाम दांडी था, वहां तक जाना था। वही जो सी कोस्ट था वो साबरमती से नजदीक पर था। The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. सोच लो, जो भी वॉलेंटियर्स थे लगभग 24 दिन पैदल यात्रा किए और प्रतिदिन 10 माइल चलते थे। वो किलोमीटर नहीं, माइल। Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. और जहां भी रात हो जाता था, जहां भी वो रुकते थे, वहां पर वो कहते थे लोगों से कि स्वराज क्या है, हमें क्यों स्वराज की जरूरत है, स्वराज प्राप्ति का उद्देश्य हमारा क्यों है, क्यों स्वराज ही हमारा लक्ष्य है, और कैसे हमें ब्रिटिश को विरोध करना है, कैसे उनका मुकाबला करना है। इन सारी चीजों के बारे में जहां भी खड़े होते थे, जहां भी खड़े होकर भाषण देते थे, वहां इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करते थे। बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए वहां एकत्रित होते थे और उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होते थे, प्रभावित होते थे उनके इस सारे भाषण से। जो भी एड्रेस करते थे वो गांधी जी, कॉमन पीपल, गांव के लोग जो थे वो सब गांव से निकल निकल करके आएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। ऑन 6 अप्रैल, बेटा यहाँ 6 अप्रैल का डेट देखो दोबारा रिपीट हुआ है। ख्याल है पुराना 6 अप्रैल वाला डेट? याद है? Yes, ma'am. क्या था बताओ तो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ बताओ।
मैम गांधी जी हड़ताल होने वाला था, हड़ताल हाँ में। तो कौन सा हड़ताल होने हड़ताल? वाला वही था तो 6 पूछना अब तो, ये तो हड़ताल ही होगा। कैसा हड़ताल था? मैम नॉन वायलेंट के अगेंस्ट, नॉन वायलेंट सिविल ऑब्डियंस के अगेंस्ट सत्याग्रह, टॉयलेट रॉलेट सत्याग्रह के लिए 6 अप्रैल का डेट इन्होंने चुना था। तो कब? 1919 में। अब यहाँ 1930 में भी वही दिन फिर से आ गया है। कौन सा? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को इन लोगों ने दांडी कोस्ट पर पहुंच करके और वहां क्या किए? पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी एंड सेरेमोनियली violated the law manufacturing salt by boiling sea water। और 6 अप्रैल को जब वो दांडी के तट पर पहुंचे तो वहां पे परंपरागत तरीके से उन्होंने पानी को उबाला और नमक तैयार किया। This marked the beginning of the civil disobedience movement. How was this movement different from the non-cooperation movement? Students, underline this. This is also very important question. कि ये movement non-cooperation movement से कैसे अलग था? How it was different? अब answer is given here. Underline this also. People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 and 22, but also to break colonial laws। क्या कहा गया? यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो करना ही है और कोऑपरेट नहीं ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक बात अलग क्या थी? इन्हें कानून भी तोड़ना है। They have to break the colonial laws also। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed. Peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes. Village officials resigned, and in many places forest people violated forest laws, going into reserve forest to collect wood and graze cattle। अब बेटा ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या? हाउ civil disobedience movement was started, चाहे how the people participated in the civil disobedience movement। लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस रूप में पार्टिसिपेट किया, कैसे इसमें भागीदारी लिया? उसका आंसर है यहाँ पर कि अब तो इन लोगों को क्या करना था? कॉलोनियल लॉ भी ब्रेक करना था। दे हैव आल्सो ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। और फिर यहाँ ये भी चीजें हैं कि थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। नमक इन्होंने कहाँ बनाया? दांडी तट पर, ऑन द कोस्ट ऑफ दांडी। बट everywhere on the coastal region the salt was manufactured by the people of India। भारत के लोगों द्वारा नमक बनाया गया, इसलिए कि अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हम आपकी बातों को नहीं मानते। वी आर डिसओबेइंग यू। आपने कानून बना दिया है कि नमक कौन बनाएगा? केवल ब्रिटिश हुकूमत बनाएगी, लेकिन हम स्वयं से नमक बनाकर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम आपके कानून को नहीं मानते। और फिर दूसरी चीज क्या किया गया? जहां भी सॉल्ट फैक्ट्रीज थे, एक तो तट पे बनाए गए, उसके अलावा जहां जहां सॉल्ट फैक्ट्रीज थे वहां भी इन लोगों ने क्या किया? नमक को बनाया, पानी उबाल उबाल के नमक तैयार किया। और उसके अलावा और क्या किया गया? एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बॉयकॉटेड, वही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। एंड लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, और शराब के दुकानों पर धरना दिया गया। Peasants refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्सेस। किसानों को जो रेवेन्यू देना होता था, लगान देना होता था, चौकीदारी टैक्सेस देना होता था, वो कहे हम लोग कुछ नहीं देंगे। जब आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम क्यों आपकी बातों को सुने? हमने तो 11 मांगे केवल रखी हैं, बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मात्र 11 मांगों को हमने रखा। जब आप हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं तो हम आपके बनाए गए रूल्स को क्यों फॉलो करें, क्यों सुने? और इन लोगों ने सब धीरे धीरे अपना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जितने भी गाँव के जो भी ऑफिसर्स थे उनके द्वारा इलेक्टेड थे, चाहे उन लोगों के द्वारा उन लोगों को चूज करके रख दिया गया था कि भाई यही यहाँ का जमींदार होंगे, यही तालुकदार होंगे। ये सब भी कहने लगे कि हम लोग अब काम नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ, और इन लोगों ने भी रिजाइन करना शुरू किया। एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। और बहुत सारे जगहों पर जो लोग जंगल में रहने वाले थे
इन लोगों ने जंगल के कानूनों का भी उल्लंघन किया। हाउ? गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या थे? आरक्षित वन थे, वहां जाना मना था, ये सब जाना शुरू कर दिए। दीपक यादव, आदित्य राज, व्हाट हैपेंड? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है बेटा? फिर क्या बोल रहे हो दीपक? 10th B, 9007, where are you? कनेक्ट हुए हो और लापता हो क्या? Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. अब जैसे जैसे ये विस्तार होता जा रहा था, किस चीज का? इस आंदोलन का। सब लोग इससे जुड़ते जा रहे थे, जिसके लिए जो कानून बनाया गया था वो उनका उल्लंघन कर रहे थे। जैसे कि जो जनजातीय थे, दैट मीन्स द ट्राइबल पीपल, दे वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। पीजेंट्स, they violated the revenue taxes. Again, the village people also resigned from the village officials. Different type of people were participating in this movement according to them, according to their interest. उनको किस चीज में रुचि है, वो किससे रिलेटेड है, ये देख देख करके सब लोग इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब ये विस्तृत होता गया तो अब अंग्रेजी हुकूमत डर गई कि अरे अब क्या होगा, अब तो सब विरोध करने लगे। अब इसने क्या किया, एक एक करके जो भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस लीडर्स वेर अरेस्टिंग वन बाय वन। This led to a violent clashes in many places. और जब कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया गया तो फिर हिंसा भड़क उठी। When Abdul Ghaffar Khan, underline this name, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, who was known as the frontier Gandhi? इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम है खान अब्दुल गफार खान। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armed cars and police firing. Many were killed. जब खान अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार कर लिया गया पेशावर में, पेशावर नाउ इन पाकिस्तान, तो इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ये वहीं के रहने वाले थे। तो अब जब इनको गिरफ्तार किया गया तो बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल गए और उस पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फायरिंग करवा दिया, बहुत सारे लोग उसमें मारे भी गए। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, और एक महीने बाद तो गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। Industrial workers in Sholapur attacked police stations, municipal buildings, law courts and railway stations. अब जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, उन लोगों ने अटैक करना शुरू किया। ये अटैक का मतलब क्या है बेटा? द मूवमेंट टर्न वायलेंट, ये हिंसात्मक हो गया विरोध। शुरू में तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना था, एकदम नॉन वायलेंट वे में, बट टाइम टू टाइम इट वाज चेंजिंग। शोलापुर अटैक पुलिस ऑफिस। अब पुलिस ऑफिस के ऊपर यदि कोई अटैक करता है पुलिस पोस्ट पर तो क्या होगा? पुलिस चौकी पर आक्रमण कर दिया गया लोगों के द्वारा। म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, जो नगर पालिका की जो इमारतें थी उस पर अटैक कर दिया गया। लॉ कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट थे वहां पर भी, न्यायालयों पर भी अटैक किया गया। और रेलवे स्टेशन पर भी अटैक किया गया। ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, उन सारे प्रतीकों पर जहां भी ब्रिटिश हुकूमत का सिंबल लगा हुआ होता था, उनका फ्लैग, यूनियन जैक या उनका कोई भी सिंबल लगा होता था कि दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहीं पे ये सब अटैक करना शुरू कर दिए। A frightened government responded with a policy of brutal repression, और घबराई हुई सरकार क्या की? एकदम दमनकारी नीति अपनाई कि इन्हें शांत कर दिया जाए। Peaceful सत्याग्रहीज were attacked, शांति पूर्वक जो भी सत्याग्रही काम कर रहे थे, अपना जो भी सत्याग्रह कर रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि वो एकदम रिप्रेसिव मेजर्स अपनाना चाहते थे कि इनको डरा धमका के इस आंदोलन को बंद करवा दिया जाए।
Women and children were beaten. About 100,000, 10,000 lakh, 1 lakh people were arrested. लगभग लाखों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, महिलाओं पर भी, बच्चों पर भी बुरे तरीके से प्रहार किया गया. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको अंडरलाइन करो. गांधी इरविन पैक्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. कब साइन हुआ था? When गांधी इरविन पैक्ट was signed. तो यहाँ पे अब गांधी जी को लगने लगा कि लो, फिर तो बहुत ज्यादा हिंसा होने लगा, सब जगह लोग जो है अटैक कर रहे हैं, अब बंद कर देने में ही भलाई है, वरना हम ज्यादा नुकसान के भागीदार बन जाएंगे, फिर हम अपनी आवाज को उठा नहीं पाएंगे, सत्य और अपने बलबूते पर न्याय के हिसाब से हम फिर अपने आप को पेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दिखाएंगे कि ऐसा कर रहे थे, इसके बदले में हमने ऐसा किया, ये कार्यवाही बदले की थी और हमारा कोई दोष नहीं है, हमने जो किया वो ठीक है. तो इसीलिए गांधी जी चूंकि वकालत पढ़ के आए थे, उन्हें कानून का बहुत अच्छा नॉलेज था, एडवोकेट थे, वो भी बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे इंग्लैंड से. उन्होंने कहा कि ठीक नहीं रहेगा, स्टॉप कर दो इसको. और फिर इस मूवमेंट को, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया था, कब? 22 में स्टार्ट हुआ था, 21 जनवरी में बंद हो गया था, फरवरी 1922 में. स्टूडेंट्स याद रखना बेटा, ये सब जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब जब कॉम्पिटिशन्स दोगे, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये सब हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. तो अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को बंद कर दिया और गांधी जी इरविन के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो. और गांधी इरविन जब पैक्ट हुआ तो इरविन ने कहा, जब उनसे कहा गया कि हमारा स्वराज का जो मांग है उसे पूरा किया जाए, तो इरविन ने कहा कि भाई इसके लिए आप जाइए, राउंड टेबल में हिस्सा लीजिए, क्योंकि जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं वो सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही हिस्सा लेते हैं, जो कि लंदन में होती है, और आप वहीं पर अपनी बातों को रखिए, जैसा होगा सरकार वहां पर विचार करेगी और आपके लिए जो भी डिसीजन है वो लेगी. तो गांधी जी ने सोचा कि चलो अब क्या किया जाए, समझौता किया गया, चलिए लंदन जाकर के ही अपनी बातों को पेश किया जाए. लेकिन बेचारे गए तो वहां लंदन गए, उस ठंड में, खतरनाक ठंड थी, दिसंबर की ठंड, वो भी लंदन की, लेकिन वहां से भी उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, वहां से भी निराश होकर के ही वापस आए. लेट अस सी व्हाट हैपेंड देयर. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1930. By this Gandhi-Irwin pact, Gandhi ji consented to participate in a round table conference. The Congress has boycotted the first round table conference. यहाँ तुम्हें बता दिया गया है कि 1930 में जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये लोग मूवमेंट चला रहे थे और कहना था इन लोगों का कि हम लोग हर चीज को क्या करेंगे, वायलेट करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे. तो इनको न्योता दिया गया था 1930 में भी कि आप फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए, वहां जाकर के अपनी बातों को रखिए, क्योंकि जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट्स हैं, वो ब्रिटिश ही हमारी गवर्नमेंट थी, जितने भी कॉलोनीज थे ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का पूरी दुनिया में कॉलोनी था, तो वो लोग जिनको इच्छा है वो जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर के अपनी बातों को कह सकते हैं. तो आप भी जाइए वहां. लेकिन कांग्रेस ने उस समय इसको मना कर दिया था, बॉयकट किया था, बहिष्कार कर दिया था. लेकिन इस बार 31 में गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने स्वीकार किया कि ठीक है भाई, चलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया जाए, देखें वहां की सरकार क्या कह रही है और क्या डिसीजन लेना चाहती है. तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज boycotted by the Congress, यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लेना, in London, and the government agreed to release the political prisoners. गांधी जी ने समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिया, ये कहे कि भाई आप तो कह रहे हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए, तो हम तो चल रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं. तो उन लोगों के साथ समझौता हुआ और कहा गया कि जितने भी आपके राजनीतिक कैदी हैं उन्हें हम छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे. तो जो भी राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने के समझौते के साथ ये समझौता साइन किया गया और गांधी जी लंदन गए. In December 1931, Gandhi ji went to London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed. गांधी जी बेचारे गए तो लंदन,
लेकिन वहां लंदन जाने के बाद भी ये वार्ता जो थी असफल रह गई और हताश होकर के फिर गांधी जी लौट आए। Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. जब वापस लौट के आते हैं भारत, क्या देखते हैं? सरकार तो दमनकारी चक्र अपना ली है। जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें तो जेल में ठूसा जा रहा है। इवन जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी, उसी को इलीगल घोषित कर दिया गया है। और जितने भी हमारे राजनीतिक कैदी हैं उनके ऊपर जबरन कार्यवाही की जा रही है और हमारे नेताओं को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को उसी समय फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। He discovered that government had begun a new cycle of repression. Khan, Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts. With great apprehension, महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movement. ये सारी प्रक्रियाओं को देख के गांधी जी बहुत चिंतित हो गए और चिंतित इसलिए हुए कि वहां गए तो भी फायदा नहीं हुआ, यहाँ का भी हमारा सब चीज समेटा हुआ सारा बिखर गया, कोई फायदा नहीं हुआ। चिंता के साथ इन्होंने फिर से रीलॉन्च किया, दोबारा से फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन जो जनता थी उन्हें काफी निराशा हुई, नाराज हो गए सब कि बट मूवमेंट स्टार्ट करो इतना मन से और बीच में बिना किसी डिसीजन के खत्म हो जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने दोबारा से इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहा, क्योंकि विदाउट एनी डिसीजन, विदाउट एनी रिजल्ट द मूवमेंट वाज स्टॉप्ड। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो फिर से इस मूवमेंट को तीसरे बार भी स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस मूवमेंट ने धीरे धीरे अपने जो इंटरेस्ट थी, अपनी जो पहचान थी, उसको इसने खो दिया और ये लास्टली मूवमेंट बंद हो गया। And a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstration and boycotts. कौन ये बच्चा है भाई? हार्ट ब्रोकन, पागल हो गए हो क्या जी? किसका दिल टूट गया है? नाम में हार्ट ब्रोकन लगाया है। गजब के बच्चे हैं सब। Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement for over a year. The movement लग रहा है मैं महात्मा गांधी की बात सुन करूँ हार्ट ब्रोकन लगाया है। चलो, लेकिन ये नहीं है बेटा, अपने आप को तुम लोग अपनी पहचान रखो। मिनट मिनट लोगों का डिसीजन चेंज होता रहता है। और द मूवमेंट कंटिन्यूड बट कौन विनोद विनोद कर रहा? दीपक यादव, क्यों बेटा ज्यादा पढ़ लिए हो? म्यूट कर दें। और 1934 तक जाते जाते इसने अपने सारे जोश को, सारे मूवमेंट की जो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी वो ठंडी पड़ गई और मूवमेंट बंद हो गया। अब देखो, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। लोगों ने भागीदारी तो निभाई, पार्टिसिपेट किया, लेकिन किस तरीके से उन्होंने इस मूवमेंट को देखा। इसके पहले यदि तुम चाहो तो सोर्स सी भी पढ़ लिया जाए, बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं बेटा? कौन बोल रहा है? दीपक? मैम डिवोट डिसिपल। उनके बहुत अच्छे अनुयायी थे, शिष्य थे। जैसे कि जो भी किसी के बातों को फॉलो करता, फॉलोअर होता, वैसे डिसिपल उनके शिष्य थे, उनकी बातों को मानने वाले थे। बोलो आदित्य राज। ठीक है, चलो सोर्स सी पे आओ, इसको भी पढ़ लिया जाए, पेज नंबर 63। बेटा हम लोग बात किए थे एक दिन कि बात क्या किए थे, तुमने पढ़ा था इसमें कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया, ये बताओ पहले। अब तो ये टॉपिक को हम लोग सोर्स सी को पढ़ लिया जाए, उसके बाद ही अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो पहले इसको देखा जाए कि ये क्या है सोर्स में, और तुम लोग पहले बताओ कि क्या तुम लोगों ने पढ़ा है और क्या तुम लोगों को समझ आया। उसमें से यदि कोई टॉपिक छूटा हो तो पूछ लो, और नहीं छूटा हो तो ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको।